Passage number 19, symbol, pratik, phase 2, translation into Hindi. Shadows are more alive than the reality. Shadows are longer, deeper, richer. They seem to have a life of their own, independent and protecting. There is a peculiar satisfaction in their invitation. परछाइयाँ वास्तविकता से अधिक जीवंत होती हैं. परछाइयाँ लंबी, गहरी, समृद्ध होती हैं. ऐसा लगता है कि उनका अपना स्वतंत्र और रक्षा करने वाला जीवन है. उनके निमंत्रण में एक विशेष संतोष है. The symbol becomes more important than reality. प्रतीक वास्तविकता से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है. The symbol gives us shelter. It is easy to take comfort in its shelter. प्रतीक आश्रय देता है. इसकी शरण में आराम करना आसान है. You can do what you will with it. It will never contradict. It will never change. It can be covered with garlands or ashes. आप इसके साथ जो चाहे कर सकते हैं. यह कभी विरोध नहीं करेगा. यह कभी नहीं बदलेगा. इसे माला या भस्म से ढका जा सकता है. There is an extraordinary satisfaction in a dead thing, in a picture, in a conclusion, in a word. एक मृत वस्तु में, एक तस्वीर में, एक निष्कर्ष में, एक शब्द में, एक असाधारण संतुष्टि होती है. They are dead, past all recalling, and there is pleasure in the many smells of yesterday. वे मर चुके हैं, स्मृति के परे हैं और कल की कोई महकों में प्रफुल्लता है. The brain is always the yesterday, and today is the shadow of yesterday, and tomorrow is the continuation of that shadow, somewhat changed, but it still smells of yesterday. मस्तिष्क हमेशा बीता हुआ कल अर्थात yesterday है और आज अर्थात टुडे कल की छाया है. कल अर्थात yesterday की छाया है और आने वाला कल अर्थात tomorrow उस छाया की निरंतरता है. कुछ बदली हुई है लेकिन अभी भी कल की गंध आती है. So the brain lives and has its being in shadows. It is safer, more comforting. तो मस्तिष्क जी लेता है और छाया में इसका अस्तित्व होता है. यह अधिक सुरक्षित, अधिक आरामदायक है. Consciousness is always receiving, accumulating, and from what it has gathered, interpreting. Receiving through all its pores, storing up, experiencing from what it has gathered, judging, compiling, modifying. चेतना हमेशा ग्रहण कर रही है, संकलन कर रही है और जो उसने इकट्ठा किया है उसकी व्याख्या कर रही है. इसके सभी छिद्रों के माध्यम से ग्रहण करता है, संग्रह करता है. जो कुछ उसने इकट्ठा किया है उसका अनुभव करता है, मूल्यांकन करते हुए, संकलन करते हुए, संशोधन करते हुए. It looks not only through the eyes, through the brain, but through this background. यह न केवल आँखों से, मस्तिष्क के माध्यम से, बल्कि इस पृष्ठभूमि के माध्यम से देखता है. Consciousness goes out to receive, and in receiving it exists. चेतना प्राप्त करने के लिए बाहर जाती है और प्राप्त करने में यह अस्तित्व में रहता है. In its hidden depths, it has stored what it has received through centuries, the instincts, the memories, the safeguard, adding, only to take away to add further. सदियों से जो कुछ मिला है, जो वृत्ति, स्मृतियाँ, रक्षण, जोड़ना केवल दूर करने के लिए और जोड़ने के लिए ही उसने अपने छिपी हुई गहराइयों में संजोया है. When this consciousness looks out, it is to weigh, to balance and to receive. जब यह चेतना बाहर देखती है तो यह तोलने,
संतुलित करने और ग्रहण करने के लिए होता है. And when it looks within, its look is still the outer look, to weigh, to balance and to receive. The inward stripping is another form of adding. और जब वो भीतर देखता है तो उसका देखना अभी भी बाहरी देखना ही है, तोलने, संतुलित करने और प्राप्त करने के लिए. भीतरी नग्नता जोड़ने का और एक रूप है. This time binding process goes on and on with an ache, with fleeting joy and sorrow. यह समयबद्ध प्रक्रिया पीड़ा के साथ, क्षणभंगुर सुख और दुख के साथ चलती रहती है. But to look, to see, to listen without this consciousness, an outgoing in which there is no receiving, is the total movement of freedom. लेकिन इस चेतना के बिना देखना, सुनना एक ऐसा बहिर्गमन जिसमें कोई ग्रहण नहीं है, यह स्वतंत्रता की समग्र गति है. This outgoing has no center, a point, a small or extensive, from which it moves. Thus it moves in all directions without the barrier of time-space. इस बहिर्गमन का कोई केंद्र नहीं है, एक बिंदु, छोटा सा या व्यापक, जिससे यह चलता हो. इस प्रकार यह समय ध्यान की अवरोध के बिना सभी दिशाओं में गति करता है. इट्स लिसनिंग इज टोटल, इट्स लुक इज टोटल. इसका सुनना पूर्ण है, उसका देखना पूर्ण है. दिस आउटगोइंग इज द एसेंस ऑफ अटेंशन. यह बहिर्गमन अवधान अर्थात अटेंशन का सार तत्व है. इन अटेंशन ऑल डिस्ट्रैक्शंस आर, for there are no distractions. अवधान अर्थात अटेंशन में सभी विक्षेप अर्थात डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, क्योंकि इसमें कोई विक्षेप नहीं है. Only concentration knows the conflict of distraction. विकर्षण का द्वंद्व अर्थात कॉन्फ्लिक्ट तो एकाग्रता अर्थात कंसेंट्रेशन ही जानती है. ऑल कॉन्शसनेस इज थॉट, एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड, वर्बल और सीकिंग द वर्ड, थॉट एज फीलिंग, फीलिंग एज थॉट. समस्त चेतना विचार है, अभिव्यक्त हो या अव्यक्त, मौखिक या शब्द के खोज में, भावना के रूप में विचार, विचार के रूप में भावना. थॉट इज नेवर स्टिल. रिएक्शन एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इज थॉट, एंड थॉट फर्दर इंक्रीजेज रेस्पॉन्सेज. विचार कभी स्थिर नहीं होता. स्वयं को अभिव्यक्त करने वाला प्रतिक्रिया विचार है, और विचार प्रतिक्रियाओं को और बढ़ाता है. ब्यूटी इज द फीलिंग विच थॉट एक्सप्रेसेस. सौंदर्य वो अनुभूति है जो विचार व्यक्त करता है. लव इज स्टिल विद इन द फील्ड ऑफ थॉट. प्रेम अभी भी विचार के दायरे में है. इज देयर लव एंड ब्यूटी विद इन द इनक्लोजर ऑफ थॉट. क्या विचार के घेरे में प्रेम और सौंदर्य है? इज देयर ब्यूटी व्हेन थॉट इज. क्या सौंदर्य है जब विचार है? द ब्यूटी, द लव दैट थॉट नोज इज द अपोजिट ऑफ अगलीनेस एंड हेट. वो सौंदर्य, वो प्रेम जिसे विचार जानता है, वो कुरूपता और घृणा के विपरीत है. ब्यूटी हैज़ नो अपोजिट नोर हैज़ लव. सौंदर्य का कोई विपरीत नहीं है, अपोजिट नहीं है, और न ही प्रेम का है. सीइंग विदाउट थॉट, विदाउट द वर्ड, विदाउट द रेस्पॉन्स ऑफ मेमोरी इज होली डिफरेंट फ्रॉम सीइंग विथ थॉट एंड फीलिंग. बिना सोचाई के देखना, बिना शब्द के, बिना स्मृति के, प्रतिक्रिया के देखना, विचार
और भावना के साथ देखने से पूरी तरह भिन्न है. What you see with thought is superficial. Then seeing is only partial. This is not seeing at all. आप जो विचार के साथ देखते हैं वो सतही है. तब देखना सिर्फ आंशिक होता है. यह बिल्कुल भी देखने का क्रिया नहीं है. Seeing without thought is total seeing. बिना सोचाई देखना समग्र रूप से देखना है. Seeing a cloud over a mountain without thought and its responses is the miracle of the new. It's not beautiful, it's explosive in its immensity. It is something that has never been and never will be. पहाड़ पर बादल को सोचाई और उसके प्रतिक्रिया बिना देखना नवीनता का चमत्कार है. यह सुंदर नहीं है, यह उसकी विशालता में विस्फोटक है. यह कुछ ऐसा है जो न कभी था और न कभी होगा. टू सी, टू लिसन, consciousness in its entirety must be still for the destructive creation to be. देखने के लिए, सुनने के लिए चेतना को अपनी संपूर्णता में स्थिर होना चाहिए ताकि विनाशकारी सृष्टि हो सके. It is the totality of life and not the fragment of all thought. यह जीवन की समग्रता है, न कि सभी विचारों का अंश. There is no beauty but only a cloud over the mountain. It is creation. कोई सुंदरता नहीं है, केवल पर्वत के ऊपर एक बादल है और यह सृजन अर्थात क्रिएशन है. Phase 3 Comprehension. Question number 1. What is the main point that the author is making about shadows? लेखक छाया के बारे में मुख्य बात क्या कह रहा है? The author is making the point that shadows are often more appealing than reality. They are more mysterious and more stimulating. लेखक इस बात पर जोर दे रहा है कि परछाइयाँ अर्थात शैडोज अक्सर वास्तविकता से अधिक आकर्षक होते हैं. वे अधिक रहस्यमय और अधिक उत्तेजक हैं. What is the relationship between shadows and the brain? छाया और मस्तिष्क के बीच क्या संबंध है? The brain is constantly creating shadows. It is constantly interpreting reality and creating images that are more comfortable and familiar. मस्तिष्क लगातार छाया बनाता रहता है. यह लगातार वास्तविकता की व्याख्या कर रहा है और ऐसी छवियां बना रहा है जो अधिक आरामदायक और परिचित हो. What is the significance of the phrase the total movement of freedom? स्वतंत्रता का संपूर्ण गति. इस वाक्यांश का क्या महत्व है? The total movement of freedom is the ability to see reality without the interference of the brain. It is the ability to see things as they are, without judgment or interpretation. स्वतंत्रता की संपूर्ण गति मस्तिष्क के हस्तक्षेप बिना वास्तविकता को देखना अर्थात देखने की क्षमता है. यह बिना निर्णय या व्याख्या के चीज़ों को वैसे ही देखने की क्षमता है जैसे वे हैं. What is the relationship between attention and distraction? अवधान अर्थात अटेंशन और विकर्षण अर्थात डिस्ट्रैक्शन के बीच क्या संबंध है? Attention is the opposite of distraction. Attention is the ability to focus on the present moment without being pulled away by thoughts or emotions. Distraction is the opposite of attention. It is the inability to focus on the present moment and to be pulled away by thoughts or
इमोशंस। अवधान अर्थात अटेंशन भटकाव के विपरीत है। अवधान विचारों का भावनाओं से दूर हुए बिना वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है, कंसंट्रेट करने की क्षमता है। अवधान भटकाना अवधान के विपरीत है। यह वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने और विचारों या भावनाओं से दूर चले जाने में असमर्थता है। What is the relationship between beauty and love? सुंदरता और प्रेम के बीच क्या संबंध है? Beauty and love are opposites. They are both expressions of the totality of life. They are both experiences that can only be fully appreciated when the mind is still and attention is present. सौंदर्य और प्रेम विपरीत नहीं है। वे दोनों जीवन की समग्रता की अभिव्यक्ति हैं। वे दोनों ऐसे अनुभव हैं जिन्हें केवल तभी पूरी तरह से सराहा जा सकता है जब मन शांत हो और अवधान मौजूद हो, अटेंशन मौजूद हो। Thank you for watching, and if there are any questions that have arisen in your mind, please put them down in the comment box or description box. Thank you again.